हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू दिस न्यू सीरीज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज. द पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज टू मेक you strengthen your problem solving skills. Problem solving skills is the skill which helps you solve problems very objectively. When you look at the problem, you look with a fresh eye, you look with a fresh mind. When you are reading the question, you are totally into the question, you are trying to extract all the information, you are looking into the each word and each language of the question, and you are trying to figure out exactly what exactly being asked and how you are going to approach it. This whole set of skill which you need to go through from one point to the last point and connecting the whole dot is called problem solving skills. Now if you go into any exams or any life in ahead, even in real life, you will get so many problems where you would be tested on your quantitative aptitude and also logical aptitude. At the same time, if you look for any competitive exams, their examination is totally entirely based on testing and assessing your quantitative aptitude. At the same time, even when after 10th, when you will be going for IIT JEE or NEET or even like normal science stream subject or even for commerce and mathematics, what you need to know is, are you a good problem solver? Which means, do you have a problem solving skills? Which means, do you have an eye to retain information? Do you have an eye to extract information and exactly figure out and build the structure that what exactly happening? As you know, many of the students, when they go from class 10 to 11, suddenly their life gets little shaky in terms of academic life because the content gets expanded so strongly. Mathematics doesn't remain mathematics, it becomes algebra, it becomes analytical geometry, it becomes calculus. Chemistry doesn't remain chemistry, it becomes physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. Physics doesn't remain physics, it becomes classical physics, modern physics. So you have so many variations in these subjects, and the complexity of the theory goes really high. For that, what you need to have a mindset which can help you analyze those theory and create those structure. If you are not having this problem solving skill, you will find very it would be very big, it would be a big problem for you in retaining those information, in retaining those concepts, in understanding those concepts. So it's a right time, if you are in class 8th or 9th or 10th, it's a right time to develop that skill. Even let's say after college, if you want to go for MBA, even if you want to go for IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, or even any big B school, what you need to do, you need to appear in CAT exam, and CAT exam is heavily based on quantitative aptitude series, quantitative aptitude testing. At the same time, even when you are in IITs and ITs or any engineering college or any college, and you have to appear in examination, or you want to sit in many reputed companies, they really test you on your quantitative aptitude. So you cannot skip this part of problem solving skills, because people are interested in knowing how good you are a problem solver. So that is why, for that solution, we have started this series, quantitative aptitude series. Students who are in 8th, 9th, 10th, this is the right time to develop these skills. We are going to develop these skills through problem solving. We'll be introducing you to many problems where you have to think very rationally, very logically. We won't be bombarding so many theory for solving these problems. What you need is just a clean mind and a common sense and a peaceful mind. If you have these three, you will be able to handle the problems which we are going to face. So in this topic, the chapter 1, we are going to solve, we have brought 10 questions which is heavily based on your कॉमन सेंस रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनैलिटी. आप लोग सब प्रोपोर्शन पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी मैं बता देता हूँ, आप लोग सब प्रोपोर्शन जानते हैं. जैसे कि आप लोग अगर शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप अगर कोई आर्टिकल 5 आर्टिकल अगर आप 50 रुपीज़ का लेते हैं, तो 100 आर्टिकल लेने में आपका प्राइस बढ़ेगा. तो मतलब जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ता है, वैसे वैसे पैसे बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं. अगर सेम आर्टिकल है तो सेम प्रोपोर्शन बढ़ते हैं. तो इन दोनों का क्वांटिटी और कॉस्ट की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो डायरेक्ट होती है. एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरी बढ़ी, इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एट द सेम टाइम, जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप लेट से आगरा की तरफ निकल रहे हो, आगरा अगर यहाँ से 200 किलोमीटर है, और अगर आप 50 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो तो आपको 4 घंटे लगेंगे आगरा पहुँचने में, और अगर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो तो आपको 2 घंटे लगेंगे. तो मतलब जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाया,
टाइम कम हो गया, तो जो स्पीड और टाइम के बीच का जो रिश्ता है वो इनवर्स रिलेशन है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता होंगे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कुछ इनवर्स प्रोपोर्शन है। बस उसी चीज़ को सोचते हुए हम आगे के सवाल को करेंगे। तो आइए पहला सवाल, पहले मैं अपना स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ सो दैट हमारे पास स्पेस हो सॉल्व करने का प्रॉब्लम और आप सॉल्यूशन देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला सवाल बहुत ही आसान है। क्या क्या सवाल है? सवाल है 10 आदमी एक काम को 18 दिन में कर रहा है। 10 men can do a piece of work in 18 days. In how many days 12 men will do it? आसान सा सवाल है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता है कि 10 आदमी अगर एक काम को 18 दिन में कर रहा है तो अगर एक आदमी को वो काम करना होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा दिन लगेंगे। कितने ज़्यादा दिन लगेंगे? 180 दिन लग जाएंगे। बताइए क्यों? आपको पता है। और वही अगर एक आदमी को 12 आदमी आ जाते हैं, एक के बदले 12 हो जाते हैं, तो वो काम कम जल्दी हो जाएगा, तो मतलब कम दिन लगेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको पता है 10 men 1 work 18 days, right? So 1 man 1 work, बताइए क्या होगा? 18 into 10। सही बात है, सीधी सी बात है। अगर आदमी कम होगा तो दिन बढ़ेगा। बताइए कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। सिमिलरली जब हमने 12 आदमी कर दिए तो क्या हुआ? दिन अब घट जाएगा। 12 men 1 वर्क, तो क्या होगा आंसर? 18 into 10 by 12 which is going to be 6 3s are 18, 6 2s are 12, 2 5s are, so answer would be 15 days. I hope you got the answer right. Everyone, you all are with me, just be with me. आराम से दिमाग लगा के सोचो, you will be able to solve it. Second question is very easy. अगर आप गौर से देखोगे लैंग्वेज पे आप ध्यान दो। 5 men और 7 boys, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 men और 7 boys can finish a work in 308 days। मतलब या तो 5 एडल्ट चाहिए मुझे या 7 लड़के चाहिए। मतलब 5 एडल्ट और 7 लड़के दोनों बराबर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 5 men is equivalent to 7 boys इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के टर्म्स में दोनों इक्वलेंट हैं। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 5 men और 7 boys की एफिशिएंसी सेम है। तो एक मैन कितने बराबर लड़कों के कितने बराबर हो गया? 7/5 लड़कों के बराबर हो गया। तो 15 मैन कितने लड़कों के बराबर हो गए? बताइए। 7/5 into 15 which makes it 21 boys। तो 5 मैन 7 लड़कों के बराबर हैं, तो 15 मैन कितने लड़कों के बराबर हो गए? 21 बॉयज़ के बराबर हो गए। अब आपको पता है कि 15 मैन प्लस 23 बॉयज़ को अब ये काम फिनिश करना है। मतलब और नहीं है, एंड है। 15 मैन एंड 23 बॉयज़, मतलब 15 मैन एंड 23 बॉयज़। और आपको ने अभी बताया है कि 15 मैन इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी बॉयज़? दे आर इक्वलेंट टू 21 बॉयज़। तो मैं इसको सारे को बॉयज़ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 15 मैन इज इक्वल टू 21 बॉय प्लस 23 बॉय विच इज इक्वलेंट टू 44 बॉयज़। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 मैन एंड 23 बॉयज़ इज एज गुड एज 44 बॉयज़। अब हमें ये जानना है कि 44 बॉयज़ कितने दिन में ये काम करेंगे, राइट? आपके पास मैथ्स है, आपको पता है 7 बॉयज़ एक वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं? 308 डेज में। तो 1 बॉय 1 वर्क को बताइए ज़्यादा दिन में करेगा या कम दिन में? आपको पता है जैसे ही लड़के के नंबर कम हो जाएंगे दिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 308 इंटू 7 और 44 बॉयज़ हैं, 1 वर्क हैं, तो क्या हो जाएगा? 308 इंटू 7 बाई 44 विच मेक्स इट 44 7s are and 7 7s are 49। सो 49 डेज में काम ख़त्म कर लेंगे। तो मतलब पहले 308 दिन लग रहे थे, अब 49 डेज ही लगेंगे। तो कितना दिन कम हो गया? 308 माइनस 49 विच मेक्स इट 259 डेज। आई होप यू ऑल गॉट इट। आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, छोटे से बच्चों का सवाल है कि अगर 3/4 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज 2,10,000, अगर 3/4 ऑफ अ प्रॉपर्टी का दाम 2,10,000 है तो 4/7 ऑफ द प्रॉपर्टी का दाम क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं 3/4 का दाम 2,10,000 है। तो आपको पता है कि जितना फ्रैक्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। प्रॉपर्टी जैसे जैसे फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। तो अगर होल प्रॉपर्टी की दाम कितनी होगी? 4/3 इंटू 2,10,000। आप लोग सबको पता है, इतना मैथ सबको आता है। दैट मेक्स इट 2,80,000, राइट?
तो 2,80,000 की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का 4/7 क्या होगा? तो 4/7 होगा 4/7 2,80,000। आपको पता है प्राइस और प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो 7 ये हो गया 40,000। 40,000 इंटू 4 इज 1,60,000 इज द आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है इसे कैसे हैंडल करना है। आइए 4 सवाल देखते हैं। 4 सवाल पे ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बहुत सारे बच्चे हो सकता है थोड़े से घबरा जाए, थोड़ा सा ये, लेकिन अगर आप शांत रखेंगे अपने दिमाग को तो बड़े आराम से देखिए इन्फॉर्मेशन समझिए। 1,200 रुपये क्विंटल जब प्राइस है तो 15 रुपए का क्या आता है? 100 ग्राम लोफ। आपको बताना है कि अगर 1,000 रुपए क्विंटल हो तो 12 रुपए का कितना लोफ आएगा। बहुत ही आसान सा है, अगर आप ध्यान से दोगे तो। मैंने x ग्राम लिख दिया है, तो आपको एक्चुअली में x ग्राम बताना है, ठीक है। अगर मैं देखूं इस इंफॉर्मेशन पे, अगर मैं बात करूं, इस इंफॉर्मेशन को आगे ले जाऊं कि 1,200 के बदले 1 रुपए क्विंटल दाम है, मतलब बहुत सस्ता है, तो डेफिनेटली 15 रुपए में बहुत ज़्यादा लोफ बेचना पड़ जाएगा। तो मतलब कितना बेचना पड़ जाएगा? 100 ग्राम इंटू 1200, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ये करोगे तो सस्ता हो गया ना, तो सस्ता हो गया तो बहुत सस्ता हो गया। 1 रुपए का 100 किलो आ रहा है, तो भाई 15 रुपए का तो कितने हज़ार, कितने ग्राम हो जाएंगे? तो 100 इंटू 12 हो जाएंगे। अब इसको मैं 1,000 रुपये क्विंटल कर दे रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? 15 रुपये ही रख रहा हूँ। तो अगर 15 रुपये रख दिया 1,000 पे तो क्या हो गया? तो डेफिनेटली अब अमाउंट घटेगा। तो 1,000 इंटू 1,200 बाई 1,000 ग्राम्स, तो क्या हो गया आंसर? यहाँ से देखिए, 100 से 100 गया, ये से ये गया, 120 ग्राम। तो अब आपको ये समझना होगा कि 1,000 रुपये क्विंटल, 1,000 रुपये क्विंटल अगर आप 15 रुपये का बेचते हो तो आपको लोफ 15 रुपये का 120 ग्राम लोफ मिलेगा। 1,000 रुपये क्विंटल अगर वीट है तो आप 15 ग्राम में कितना, 15 रुपये में कितने ग्राम लोफ बेच सकते हो? 120 ग्राम। तो अगर 1,000 रुपये क्विंटल रखेंगे तो 1 रुपये में डेफिनेटली आप थोड़ा कम ग्राम बेचोगे, कितना? 8 ग्राम। 120 बटा 15 ग्राम विच इज़ 8 ग्राम्स। और वैसे ही अगर आप 1,000 रुपये क्विंटल में 12 रुपये दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8 दैट मेक्स इट 96 ग्राम्स। तो ये होगा आपका आंसर कि आप कितने ग्राम का लोफ बेचोगे 12 रुपये में अगर 1,000 रुपये क्विंटल हो गया, तो 96 ग्राम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए। अगेन ये लंबा दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे। वी जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक फिनिश अ हाईवे। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने हाईवे फिनिश करना है। कितना का हाईवे? 6 किलोमीटर लॉन्ग है, और कितने दिन में ख़त्म करना है? 250 डेज में ख़त्म करना है, ठीक है। तो उन्हें 6 किलोमीटर रोड बनाना है, 250 दिन उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि 250 दिन में 6 किलोमीटर रोड बना दो। एम्प्लॉय ने क्या किया? इसने, कॉन्ट्रैक्टर ने 54 मैन को हायर किए, 54 मैन को हायर किए और 100 दिन तक काम कराया। क्या कराया? 100 दिन तक काम कराया। और कितना देखा? देखा कि 2.25 किलोमीटर बन चुका है। 100 दिन में 2.25 किलोमीटर बन चुका है। उसके बाद वो सरप्राइज हुआ, उसे लगा कि भैया, मतलब उसे थोड़ा सा झटका सा लगा, उसके कैलकुलेशंस में लगा कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो ही सेड हाउ मेनी मैन शुड बी एडेड और एलिमिनेटेड इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क इन गिवन टाइम। तो मतलब वो कह रहा है कि अगर गिवन टाइम में इसको 6 किलोमीटर ख़त्म करना है तो इसको आदमी कम पड़ेंगे या ज़्यादा पड़ेंगे। अगर ज़्यादा पड़ेंगे तो किसको एलिमिनेट करना होगा, और अगर कम पड़े हैं तो कितने आदमी और आएंगे। तो पहले देखते हैं कि 100 दिन में बंदे ने 54 आदमी को एम्प्लॉय करके 2.25 किलोमीटर बना लिया है। अब इसके पास बचे हैं 150 डेज, क्योंकि इसने 250 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इसे पता नहीं है कि कितने आदमी चाहिए, लेकिन इसे फिनिश करना है कितना काम और? 6 किलोमीटर का रोड था, 2.25 ख़त्म कर लिया, तो बचा कितना? 3.75 किलोमीटर। तो 3.75 किलोमीटर इसे और ख़त्म करना है। अब गौर से देखिए, 100 दिन में 2.25 किलोमीटर ख़त्म करने के लिए इसे 54 आदमी चाहिए थे। 100 दिन में 2.25 किलोमीटर ख़त्म करने के लिए इसे कितने आदमी चाहिए थे? 54।
राइट। अगर इसे 100 दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर बनाना होता तो ज़्यादा आदमी चाहिए होते या कम? डेफिनेटली कम आदमी चाहिए होते। तो ये क्या करता है 54/2.25। और अगर इसे 100 दिन में 3.75 किलोमीटर बनाने होते हैं सिर्फ 100 दिन में, तो कितने आदमी चाहिए होते हैं? 54/2.25 इंटू 3.75। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से यहाँ जीरो गया, 25 9 ज़ा 225, 25 1 ज़ा 25, 25 ये हो गया 15 और 9 6 ज़ा, तो इसे 90 मैन चाहिए अगर ये 3.75 किलोमीटर 100 दिन में ख़त्म करना है। लेकिन इसे 3.75 किलोमीटर कितने दिन में ख़त्म करना है? 150 दिन में। तो अगर इसे 1 डे में ख़त्म करना होगा तो कितने लोग चाहिए होंगे? 3.75 इंटू 90 इंटू 100, आपको पता है। और अगर इसे 150 डेज में ख़त्म करना होगा, 150 डेज में 3.75 किलोमीटर, तो 90 इंटू 100 अपॉन 150 विच मेक्स इट 52 ज़ा 53 ज़ा 330। तो ही नीड 60 मैन, ही नीड 60 मैन। इसके पास कितने हैं? 54 मैन, ही नीड 60 मैन। तो कितने मोर एम्प्लॉय करने होंगे? 6 मैन मोर नीडेड, 6 मैन मोर नीडेड। तो ये सवाल बिल्कुल आसान था, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा था, इसमें आपको थोड़ा सा शांति रख के स्टेप बाय स्टेप बढ़ना था, जो मैं बढ़ रहा था आपको दिखा रहा था। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 50 डेज ऑफ 1000 सोल्जर्स इन अ फोर्ट। मतलब 1000 सोल्जर एक फोर्ट में है जिनके लिए 50 दिनों के लिए उनको खाना है। हाउ मेनी सोल्जर्स शुड लीव आफ्टर 15 डेज सो दैट द रिमेनिंग फूड मे लास्ट फॉर 40 डेज। देखिए अब क्या हो रहा है कि फूड जो है वो 50 डेज के लिए है 1000 सोल्जर्स के लिए, और 15 दिन तक काम चल जाता है। तो बताइए कितना पर फूड ख़त्म हो चुका है? तो आपको पता है कि 15 डेज में 15 अपॉन 50 दैट इज 30% फूड इज ओवर नाउ, यू आर लेफ्ट विथ 70% फूड, राइट। 15 दिन का खाना खत्म हो चुका है, अब आपको पास 35 दिन का खाना बचा है। अब वो 35 दिन का खाना आपको 40 दिन चलाना है। 35 डेज का खाना जो चलाने के लिए फूड जो आप चलाना है, फूड तो कांस्टेंट है, 35 डेज का फूड बचा है और वो 1000 सोल्जर्स के लिए है। अगर वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा वो फूड, तो कितने सोल्जर्स घर फोर्ट में आ गए हैं? मतलब 35,000 सोल्जर्स आ गए हैं। लेकिन हमें ये 40 दिन चलाना है, तो मतलब हमें कुछ सोल्जर्स को घर भेजना होगा। तो कितने सोल्जर्स को घर भेजेंगे? तो पहले 40 दिन चलाने के लिए मुझे सोल्जर्स कितने चाहिए? 35 इंटू 1000 अपॉन 40 विच मेक इट 7 8 8 125 विच मेक्स इट 875 सोल्जर्स। तो अगर आफ्टर 15 डेज मेरे पास 875 सोल्जर्स हैं तो मैं 40 दिन खाना चला लूँगा। तो मुझे कितने सोल्जर को घर छोड़ भेजना होगा? तो 1000 माइनस 875 विच मेक्स इट 125 सोल्जर्स हैज़ टू गो आफ्टर 15 डेज। इट्स अ इजी क्वेश्चन, आपको पता है। देखिए बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन देखते हैं कि क्या एक्चुअली में इतना बड़ा है, या क्या हम इस इतने से स्पेस में कर पाएंगे, या हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो देखते हैं क्या है, आइए पढ़ते हैं। अ बैटलशिप टेक्स 34 डेज टू रीच इट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट। मतलब एक बैटलशिप है, वो अपने पोर्ट जा रही है, उसे 34 डेज चाहिए होंगे। उसमें 360 मैन हैं। कितने मैन हैं? 360 मैन हैं, और 900 ग्राम पर डे पर हेड, 900 ग्राम पर डे पर हेड उनको फूड दी जाती है 360 मैन को। इस प्रोसेस में वो 34 डेज चल सकते हैं। 25 दिन तक जहाज चल चुकी है आफ्टर 25 डेज ऑफ इट्स वॉयज। अचानक से उन्हें एक शिप मिला जहां पे उन्होंने 240 सोल्जर को पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया। तो मतलब अब जहाज पे आ गए हैं 600 लोग। 25 दिन निकल चुके हैं, खाना अब सिर्फ 9 दिन का बचा हुआ है, और उनके पास आ गए हैं 240, मतलब 600, 360 मैन थे, उसमें 240 और ऐड हो गए, मतलब 600 सोल्जर्स हो गए। खाना सिर्फ 9 दिन का बचा था, अब उनको 360 लोगों के लिए। लेकिन अब उन्होंने जहाज़ की स्पीड बढ़ा दी ताकि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। तो वो घर पहुंच, जो उनका डेजिग्नेटेड पोर्ट था, वो पहुंचने के लिए जहाज़ की जो स्पीड बढ़ाई वो 6 डेज़ की बना दी। कितनी देर की बना दी? 6 डेज़ में अब पहुंचना है। तो अब बताइए कि हर दिन हर आदमी को कितना ग्राम ऑफ फूड पर डे मिलेगा? दिस इज द क्वेश्चन। पहले 900 ग्राम पर डे था, तो पहले देखते हैं। अगर 360 लोग थे
900 ग्राम पर डे के हिसाब से कितने दिन चलता जहाज? 25 दिन हो चुके थे, 9 डेज चलता, राइट। अगर कोई भी पैसेंजर उनको ऐड नहीं करना होता। सही बात है। अगर 360 लोग होते और इनको 1 डे ही लगता पहुंचने में, तो इन लोगों को खाना बढ़ा दिया जा सकता था, क्योंकि अब तो एक ही दिन बचा है, फूड बहुत है। तो 900 ग्राम इंटू 9, तो मतलब 8100 ग्राम्स पर डे इनको दिया जा सकता था, उस दिन पूरा लोग खा सकते थे। लेकिन अब क्या है कि 360 लोग हैं और 6 डेज में, मतलब अब 9 डेज नहीं 6 डेज, तब भी अब इनको खाना ज़्यादा मिलेगा। 900 ग्राम इंटू 9/6। लेकिन अब एक्चुअली में क्या है, 360 लोग नहीं हैं और 6 दिन में कितने लोगों को चाहिए? 600 लोगों को। अगर एक आदमी होता, 900 ग्राम इंटू 9/6, ये 6 डेज के लिए ही काम चलता, और एक ही आदमी होता तो उसको खाना बहुत मिल जाता, तो वो 360 कर देता। लेकिन अगर 600 है तो क्या होगा? अपॉन 600। अब देखिए क्या हो गया, 6 से गया 60, 60 से गया 6 से गया 10, 10 से गया 810 ग्राम्स। तो मतलब आपको 810 ग्राम, अब मतलब सबका 10%, जो सोल्जर्स को 10% मिल रहा था, 900 ग्राम पर डे मिल रहा था, उसका 90 ग्राम कम करके आप बाकियों को खाना खिलाओगे। सो 810 ग्राम पर डे। देखिए हमने इसी स्पेस में कर लिया। क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन अगर आप पीसफुल होकर इस क्वेश्चन को पढ़ते तो आप इसका आंसर निकाल सकते। तो क्या आना चाहिए? 810 ग्राम आपको पर लोगों को देना होगा, तब आप जो 9 दिन का खाना बचा था वो आप 6 दिन 600 लोगों में चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि 80% कैन फिनिश अ वर्क विद 16 डेज बाय लेबरिंग 6 आवर अ डे। मतलब आप अगर सिर्फ इसको आवर्स में चेंज कर दो तो मतलब 80% काम कर रहे हैं, 16 डेज के लिए काम कर रहे हैं और 6 आवर पर डे पे काम कर रहे हैं, राइट। अब आपको ये सेम काम 64 आदमी से कराना है 64% से, और 15 दिन में ख़त्म कराना है, तो x आवर पर डे आपको x निकालना है, राइट। ऐसे सिंपल सी बात करते हैं कि अगर मुझे 80% से ही ये काम 15 दिन में कराना हो, 80% से ही ये काम मुझे 15 दिन में कराना हो, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा? 15 डेज से पहले 1 डे मान लीजिए इसको, अगर मुझे 1 डे में ही काम कराना होगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 96 आवर, जो कि इम्पॉसिबल है, पर डे काम कराना होगा, राइट। ये मैथमेटिक्स है, हम थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन में उस तरीके से सोच सकते हैं। तो 80% को अगर 15 डेज मिल जाता है तो डेफिनेटली पर पर्सन को 6/16 टू अपॉन 15 आवर पर डे मिल जाएगा, राइट। अब हमें 80% नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ एक पर्सन है लेट से, और 15 दिन में काम कराना है, तो अगेन 6 × 16/15 इंटू, अब सबके काम बढ़ गए, 80 आवर्स हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लो। ठीक है, लेकिन एक पर्सन नहीं है, कितने पर्सन है? 64। तो 64% 15 दिन में करने के लिए क्या होगा? 6 × 16/15 इंटू 80/64, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा। ज़्यादा आदमी आ गए तो कम टाइम लगेगा पर आवर, अब कम चाहिए। अब देखो 8 10 ज़ा 8 8 ज़ा 8 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या हो गया? 8 आवर्स पर डे अब आपको काम कराना होगा। अगर आप 8 आवर्स पर डे काम कराते हैं तो 64% 15 डेज में ये काम खत्म कर लेंगे। आसान सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है कि 180 men कैन डिग अ लेक 504 मीटर लॉन्ग, 336 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप in 10 days working 14 hours each day. How many more men will be required to dig a 2406 meter long, 20 meter wide and 6 meter deep in 25 days working 5 hours each day? देखने में बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है, लेकिन अगर हम शांति से देखें तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर मैं बात करूं 180 मैन, आपका जो ये है 504 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 4 मीटर डीप
10 डेज आदमी वर्क कर रहा है 14 आवर्स पर डे, और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कितने ज़्यादा और आदमी, तो मैं उसको एक्स मैन मान लेता हूँ। और 24/06 × 20 × 6 मीटर, और काम करा रहे हैं हम 25 डेज़ के लिए, और 5 आवर्स पर डे। ओके, तो एक एक वेरिएशंस पहले करेंगे ताकि फाइनल हम इस फिगर में आ जाएं और फिर आदमी को फिगर आउट कर पाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 180 आदमी हैं, और अगर मुझे इतना ही जो वॉल्यूम अगर मैं चेंज ना करूं, और मैं 14 आवर्स पर डे के हिसाब से 10 दिन में कर रहा था, राइट। तो अगर मैं इसको 5 आवर पर डे कर देता हूँ, मतलब कम काम कराना है मुझे पर डे, तो मतलब मुझे अब ज़्यादा दिन लगेंगे। तो 10 दिन के लिए मुझे 14 आवर्स पर डे में 10 दिन लग रहा था, तो 1 घंटे में 10/10 × 14 लगेगा, और 5 में ये, तो कितने दिन लगेंगे मुझे? 28 डेज लगेंगे। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो अगर 180 आदमी चाहिए मुझे, तो मैं सेम वॉल्यूम को 5 आवर पर डे में 28 डेज में करा सकता हूँ, राइट। अगर 180 आदमी चाहिए मुझे, 180 आदमी चाहिए मुझे, और मुझे 24/06 × 20 × 6 ज़्यादा बड़ा लेक अप बनाना है, 5 आवर पर डे ही काम कराऊंगा, तो मुझे कितने लोग चाहिए? और डेफिनेटली इसके लिए 28 डेज चाहिए थे। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसको मुझे डिवाइड करना होगा 504 × 36 × 4, अगर मुझे 1 × 1 करना होगा, अगर मैं 1/1/1 का करूँगा तो इतना दिन लगेगा, और अगर मुझे ये करना होगा तो अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे 20 इतने आदमी इतने दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो मैंने मैन नंबर सेम रखा, मैंने वॉल्यूम अब बराबर कर दिया, 5 आवर पर डे में इतना दिन लग रहा है, इतने दिन के लिए मुझे 180 दिन चाहिए। अगर ये 25 दिन में करना है तो कितने दिन चाहिए? तो अब देखिए, पहले ये कैलकुलेशन करने से बेटर है मैं इसको ऐसे लिख दूं, 28 × 24/06 × 20 × 6 अपॉन 504 × 36 × 4 मैन 4 डेज के लिए मुझे कितने आदमी चाहिए? 180। अगर ये सारा काम मुझे एक दिन में कराना होगा तो मुझे ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, तो 1 डे के लिए ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 180 × 28 × 24/06 × 20 × 6 अपॉन 504 × 36 इंटू 36 × 4। और ये चीज़ मुझे अगर 25 दिन में कराने हैं तो ऑब्वियसली अब इसको मुझे 25 से डिवाइड करना होगा, तो मैंने 25 से डिवाइड कर दिया। अब शांति से इसे कैलकुलेट करते हैं। 36 5 ज़ा 188, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 4 कैंसिल आउट, 6 8 ज़ा 48 and 6 4 ज़ा this, 4 7 are 28, 4 21, and then 7 3 and 3 802. So we got 802 men. 802 men is required to finish this work. इसका मतलब हमें कितना और चाहिए? 802 minus 180, which makes it 622 men more required. ठीक है बच्चों, ये सवाल देखने में मुश्किल था, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था इस सवाल में, लेकिन आई होप आप ये सारे कैलकुलेशंस को घर पे अच्छे से फिर से पॉज करके पहले सोचना। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे आप कुछ कंफ्यूज हुए होंगे, आप इन दोनों कैलकुलेशन को फिर से देख लेना। मैंने जानबूझ के सबको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि फाइनली सब कुछ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो आप भी आराम से शांति दिमाग से इसको ज़रूर सॉल्व करना। आइए 10 सवाल देखते हैं। 10 सवाल में देखिए क्या है।
एक पब्लिशिंग कंपनी है जो 480 पेजेस की बुक बनाती है, 25 लाइन ईच पेज। मतलब आप देखो 480 पेजेस, 25 लाइन पर पेज, 20 वर्ड पर पेज पर लाइन, और कितने रुपए लेती है? 9400, 9400 लगते हैं इस कहानी को पब्लिश करने में। अगर सेम स्टोरी मुझे 520 पेज का बनाना है और 40 लाइन मुझे रखना है पर पेज और 15 वर्ड्स चाहिए पर लाइन, तो क्या प्राइस होगा, ये हमें पता करना है। तो सेम स्टोरी है, हम एक एक वेरिएशन को पहले चेंज करेंगे। जैसे पूरी कहानी को 480 को मैं कर दूंगा 520 पेज, 25 25 लाइन पर पेज एंड 20 वर्ड्स पर लाइन में मुझे पड़ेगा 9400 है। अगर 480 पेज था तो 9400 था, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएगा, इंटू 520 अपॉन 480। ये प्राइस होगा 520 पेज का 25 लाइन पर पेज। अगर 25 लाइन को चेंज करके मुझे करना होगा 40 लाइन पर पेज, तो डेफिनेटली मैंने अपने लाइंस और वर्ड्स बढ़ा दिए हैं, तो फिर से वही बात होगी कि ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएंगे। तो मैंने कर दिया 40 लाइन पर पेज, लेकिन अभी भी 20 वर्ड पर लाइन रखा, तो क्या हो गया 9400 इंटू 520 बटा 480। थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर ले जाता हूँ। 520 मैंने 40 लाइन, 25 लाइन से अब मैंने क्या कर दिया है, 40 लाइन कर दिया है। तो 25 लाइन के लिए कॉस्ट था, तो 40 लाइन के लिए 40/25 हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे क्या वेरिएशन करना है, मुझे 520 पेज ही रहने देना है। 40 लाइन को मैंने चेंज कर दिया है, अब मुझे 20 लाइन को 15 पर लाइन कर देना है। मतलब मैंने वर्ड कम कर दी, तो अब प्राइस भी मेरा कम हो जाएगा। तो 9400 इंटू 520 इंटू 40 अपॉन 480 इंटू 25। अब पहले 20 लाइन था, तो 15/20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। मैं ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट करता हूँ, और 22 ज़ा 40 करता हूँ, 2 24 करता हूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 4 13 ज़ा 14, 4 2 ज़ा दिस, 2 इंटू 4700, 47 into 13 into 100 by 5, which makes it 20, which makes it 940 into 13। 940 into 13, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 940 into 13 को मैं लिख सकता हूँ 940 into 10 प्लस लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस 940 इंटू 3। अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 9400 और ये हो जाएगा 2820, विच मेक्स इट 022। सो 12,220 would be the 12,220 would be the amount required। तो बच्चों, हमने अभी आपको 10 सवाल करके दिखाए जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट कर रहा था। जैसा कि आप देख रहे थे, कुछ सवाल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लास्ट के 2 सवाल देखिएगा, खास करके मैंने जानबूझ के लास्ट के 2 सवाल काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव रखा था, ताकि आपका टेम्परामेंट नंबर्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। जैसा कि आप देखे थे, हमने स्टार्ट किया था आसान सवालों से और एंड तक आते आते सवाल में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी। लैंग्वेज, और हमने लैंग्वेज की वॉल्यूम बढ़ा दी थी, इन्फॉर्मेशन की वॉल्यूम बढ़ा दी थी, और कैलकुलेशन ज़्यादा इंटेंसिव कर दिया था। तो आपको पता है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को इंगेज करेंगे, इंटेंस करेंगे, उतना स्ट्रांगली हमारा एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेगा और नंबर्स को लेके हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सेशन लेने में। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे सेशन के साथ, जहाँ पे हम 10 सवाल और लेके आएंगे, और इस बार हम दूसरे वेरिएशंस की बात करेंगे, दूसरे सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा। वो असाइनमेंट आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ मिलेगा, या आपको जब ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा।
ज़रूर वो 8 से 10 सवाल जो आपको असाइनमेंट शीट में मिलेगा बिल्कुल इसी आइडिया पे होगा, उसका मुझे डिटेल सॉल्यूशन चाहिए। एट द सेम टाइम जो आज हमने 10 सवाल किए हैं, इसका भी मुझे डिटेल सॉल्यूशन आप लोग अपने असाइनमेंट में करके भेज सकते हैं। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता क्या है, हम कैसे नंबर्स के साथ इंगेज होते हैं और कैसे अपने आप को कूल रखना होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट वेरी सून, बाय बाय।